This is the lecture number 11 for the chapter 3-dimensional geometry for the class 12th. And in this lecture, we are starting with question number 16 of the miscellaneous exercise, which says that if O is the origin, means coordinate of the origin is 0, 0, 0, and the coordinate of P is 1, 2, and minus 3. You have to find the equation, the line passing through the P. Passing through the P, that is passing through the point P whose coordinates are 1, 2 and minus 3 and perpendicular to OP. So the direction ratio of OP will be x2 minus x1, that is 1 minus 0, y2 minus y1 matlab 2 minus 0, and z2 minus z1 is, which is minus 3 minus 0 minus 3. So equation of the plane passing through the point 1 to minus 3 and direction ratios again to 1 to minus 3. क्या होता है फॉर्मूला इक्वेशन द प्लेन का? a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0. तो a कितना है? 1 है, x1 भी 1 है, b कितना है? b डायरेक्शन रेशियो 2 है और y1 भी 2 है, c कितना है? इट इज इक्वल टू माइनस 3, z माइनस z1 वो भी 3 है, इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0. तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई, x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 5 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 14. This is the equation of the plane passing through the point P whose coordinates is given and perpendicular to the vector OP. तो जो कि नॉर्मल होगा और उसके डायरेक्शन रेशियो हमने OP का निकाल लिया, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. In question number 17, what you have to do in question number 17? Now you have to find the equation of the plane containing the line of intersection of the plane. So वही point of intersection of the plane वाला question हो गया जो कि perpendicular to the given plane. So I am converting it into the Cartesian form, which is P1 is x plus 2y plus 3z minus 4 equal to 0. Second plane, let us call it P2, which is 2x plus y minus z plus 5 equal to 0, and it is perpendicular to the plane 5x plus 3y minus 6z plus 8 equal to 0. So equation of plane through P1, P2, we know it, for first plane plus second times lambda times second plane equal to 0. So P1 है हमारे पास x plus 2y plus 3z minus 4 और लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन है हमारे पास 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0. कन्वर्ट इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज x y z कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0. तो x वाली टर्म अलग कर ली, इट विल बी 1 प्लस 2 लैम्डा, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस लैम्डा और z की वैल्यू हो गई 3 और माइनस लैम्डा, कांस्टेंट इज माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा. Now it is perpendicular to the which plane? Third plane. ये third plane के perpendicular है, ये दे रखा है, ये first plane है, ये second plane है. Let us call this as 4. तो perpendicular की कंडीशन लगाइए कितनी? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0. a1 b1 c1 इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, a2 b2 c2 इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, इसके परपेंडिकुलर 5 3 माइनस 6. तो ये रहा a इंटू a1 इंटू a2, a2 इज 5, b1 कितना है 2 प्लस लैम्डा, b2 कितना है 3 है यहाँ पर, ये c1 कितना है 3 माइनस लैम्डा और इसका माइनस 6 है c2. ठीक है, तो इसका आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए एंड पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 4. यहाँ रिप्लेस कर दी. तो इस टाइप के आपने 5 और 6 भी अब ऑलरेडी डन. इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. रखने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाइए एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. यहाँ परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0. इससे लैम्डा निकल के आएगा. कहाँ रखेंगे लैम्डा की वैल्यू? ये प्लेन है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. ठीक है, ओके. So this is the question number 17.
नाउ व्हाट इज 18? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है ये? ओपन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 18, what it says that find the distance of the point from the intersection of these two and the plane. You have to find the distance of this point, that is -1, -5, -10, और एक प्लेन और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसका डिस्टेंस निकालना है. अब जो लाइन की इक्वेशन है वो है आपकी r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k. ठीक है. और प्लेन की इक्वेशन है r डॉट i माइनस जे प्लस k इज इक्वल टू 5. तो आपकी ये लाइन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है. तो इस पॉइंट को मैं p मान लेता हूँ, इसको q मान लेता हूँ. व्हेन वी सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ q. प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें. तो r की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो. दैट इज 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k r डॉट ये कितना है i माइनस जे प्लस k इज इक्वल टू 5. ये आपका है. निकालिए डॉट. इसको इससे डॉट निकालेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2, i से i, j से j, k से k, फिर लैम्डा. इसको इससे निकालेंगे 3 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 5. तो कोई 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया. लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई. कहाँ पुट करो? पुट इन. कहाँ पुट करेंगे? लैम्डा की वैल्यू आपको पुट करनी है 1 में. तो ये आ गया, यहाँ पर रिप्लेस करो. लैम्डा तो यही है ना. तो r आ गया आपका 2i माइनस जे प्लस 2k. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. मतलब आपके पास q के कोऑर्डिनेट आ गए कितने? 2, -1 एंड 2. और p के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने हैं? -1, -5, -10. -1, -5, -10. अब आप ये डिस्टेंस निकाल लो qp बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. तो मैंने इस लाइन को और प्लेन को सॉल्व करा. r की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करा, डॉट प्रोडक्ट निकाला. मेरे पास इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई. लैम्डा की वैल्यू व्हेन आई पुट इट हियर ये पूरा 0 हो गया. तो r मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन q आ गया. 2 - 1 2 ये q के कोऑर्डिनेट्स आ गए एंड p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है. यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट p फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द लाइन. Question number 19, what you have to do? Find the vector equation of a line. Equation of line passing through the point. कौन सा पॉइंट है? 1, 2, 3. क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, एंड इट इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन. r डॉट i minus j plus 2k is equal to 5, and let us call it first plane, and r dot 3i plus j plus k is equal to 6. So क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, because line is parallel to planes, therefore it will be perpendicular to their normals. अगर कोई एक लाइन है, सपोज ये लाइन है हमारी, और एक प्लेन के पैरेलल है, तो वो इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी. तो परपेंडिकुलर की कंडीशन रखेगी. तो लाइन की डायरेक्शन रेशो कितनी है? ए बी सी. पहले प्लेन की डायरेक्शन रेशो कितनी है? 1 - 1 2. और दूसरे प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो है 3 1 1. तो आप इसमें परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे 2 बार. ठीक है. सो देयरफॉर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0. a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0. तो a b c आएगा और इसका आएगा 1 - 1 2. तो आएगा a इंटू 1 दैट इज a, b इंटू -1 दैट इज -b, और c इंटू 2 दैट इज 2c इक्वल टू 0. ऐसे इससे लगाइए. a b c इसके कितने 3 1 1. तो आ जाएगा 3a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. अब दोबारा हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए. कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल हैं. तो मैंने बताया था आपको ये तरीका होता है. a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन. तो a निकालने के लिए क्या होगा? ऊपर नीचे रख लो इस लाइन को.
आसान हो जाता है, 3a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारे पास, a अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन, तो a के नीचे लाना है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 -2, b निकालना है तो दिस इंटू दिस दैट इज 1, दिस इंटू दिस -6, और c निकालना है दिस इंटू दिस दैट इज 1, और माइनस दिस इंटू दिस प्लस 3। तो हमारे पास हो गया a अपॉन -3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन -5 इज इक्वल टू सी अपॉन 4, लैम्डा के इक्वल रखो, तो a की वैल्यू -3 लैम्डा, b की वैल्यू हो गई 5 लैम्डा, और c की वैल्यू हो गई 4 लैम्डा। कहाँ पुट कर दो, हमें इक्वेशन ऑफ क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास ये है, ए में रख दो, ए बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। पुट इन द इक्वेशन नंबर ए। लैम्डा तो खत्म हो जाएगा आपका, जब लैम्डा हटाएंगे वहां से, पूरी इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा आपका हट ही जाएगा। कोई लाइन अगर किसी प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल ये वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन जो 1 -1 2 3 1 एंड 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लेन हमेशा नॉर्मल से डिफाइंड होता है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो ही एंगल निकालना है, तो नॉर्मल पैरेलल है तो नॉर्मल एंड सो ऑन। Now similarly is the question number 20, you have to find the vector equation of the line। तो equation of line passing through the point 1 2 and -4 क्या होगा, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c, किसके परपेंडिकुलर है, दिस लाइन, दो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, x minus 8 upon 3, y minus plus 19 upon -16 इक्वल टू z माइनस 10 अपॉन 7, और दूसरी लाइन के कौन सी है, x माइनस 15 अपॉन 3, y माइनस 29 अपॉन 8 एंड इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन -5। तो जब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 0। जब a इसके परपेंडिकुलर है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन लगेगी दो बार, फिर दोबारा दो इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, तो दिस इंटू दिस दैट इज 3a, दिस इंटू दिस -16b, दिस इंटू दिस विल बी 7c इक्वल टू 0। जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू a, दैट्स b इंटू 8 8b, देन c इंटू -5 दैट इज -5 इक्वल टू 0। फिर हमारे पास वी आर गेटिंग 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल, अगेन सेम मेथड, a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन, देन निकालना है इसका, कितना हो जाएगा 16 5 80 माइनस 56, ये जब b निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 21, और c निकालना है तो दिस इंटू दिस दैट इज 24, 3 इंटू 8 एंड प्लस का 48। तो हमारे पास आ गया a अपॉन 24, b अपॉन 36, c अपॉन दिस इज 72 इक्वल टू लैम्डा। तो a की वैल्यू हो गई 24 लैम्डा, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 36 लैम्डा, और c की वैल्यू हो गई 72 लैम्डा। कहाँ पुट करेंगे हम, पुट इन द इक्वेशन नंबर a। कहाँ पर रख देंगे, a में रख दो, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये जो हमारे पास आई है ये वाली a b c की वैल्यू रख दो, और ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 12 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम 2 लैम्डा 3 लैम्डा और तुम्हारा 6 लैम्डा लिख देंगे यहाँ पर, और लैम्डा तो खत्म होना ही है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ पर हमारे पास लगी है, वी आर गेटिंग द कंडीशन फॉर दी परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करिए दो बार। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस हमारे पास लगभग 4th टाइम वी आर गेटिंग व्हेन वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल, वी सॉल्व बाय दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड पुट इट इक्वल टू लैम्डा। इससे ए बी सी की वैल्यू प्रपोजन में आ जाती है, और यहाँ रिप्लेस करना है ए बी सी, और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा आपका। Now after that we have question number 21, prove that if a plane equation of plane intercept form, ये intercept form में ये इक्वेशन होती है, और इसका डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला होता है, इसको लेफ्ट में ले आकर के 0 हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला होता है मॉड डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमें p के इक्वल दे रखा है, d यहाँ पर -1 है, a यहाँ पर 1 अपॉन a है, b यहाँ पर 1 अपॉन b है, और c यहाँ पर 1 अपॉन c है।
अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके इक्वेशन आ जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे 1/1 ए स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ मॉड 1 का तो मॉड 1 होगा, -1 का मॉड 1 होगा। स्क्वायरिंग करके रेसिप्रोकल ले लो 1/p स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इंटरसेक्ट फॉर्म ये होता है। और इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस p दे रखा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है मॉड d अपॉन अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन p दे रखा है, d यहाँ पर -1 है, a यहाँ पर 1/a है, b यहाँ पर 1/b है, c यहाँ पर 1/c है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। In question number 22, you have to find the distance between these two parallel planes. अब मैं क्यों इनको parallel plane बोल रहा हूं? Because if you see it, it will be a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख दूंगा 2x + 3y + 4z = 6। हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन होता है d2 - d1 का मॉड अपॉन √a² + b² + c²। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन d1 d2 6 - 4 हो गया, ठीक है। 6 - 4 और a भी 2 है, b भी 3 और c 4 है, तो √2², 3² एंड 4²। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन हमें पता करना पड़ा, ठीक। सो question number, this is 22. Question number 23, you have to do yourself, because two planes are given. You have to find whether they are perpendicular, parallel or intersecting. We have already done it. तो कैसे आप परपेंडिकुलर प्रूफ करेंगे? a1 × a2, b1 × b2, c1 × c2 0 आता है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर बराबर आ जाता है तो पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे, अगर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात हो रही है। पैरेलल आप a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो, c1/c2 फाइंड करो। तो जब इसमें आप देख रहे हैं ये 23 में ये रेशो बराबर आ रही है, कितनी आ रही है? 2/3 आ रहा है, ये आ रहा है -1/-2.5 और ये तुम्हारा 4/10। तो ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आएगा, ये भी कितना आएगा? 2/5, सॉरी ये 2/5 है, 2/5, 2/5, 2/5। तो पैरेलल प्लेन्स आ रहे हैं, रेशो बराबर आ रही है, तो दे आर पैरेलल प्लेन्स। तो फिर आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। So this is the completion of the chapter 3-dimensional geometry for the class 12th, which we have done the question number last of the miscellaneous exercise. Good luck. Thank you.